A very good evening to everyone. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. evening. Good evening. So today we are going to start a new topic, new chapter, that is Negotiable Instrument Act 1881. Negotiable Instrument Act 1881 has been enacted in the year of 1881, but it came into force, it has been commenced from 1st March 1882. Okay? ठीक है? Enacted means law बन गया. ठीक है? And it came into force means when it has been started. So it is commenced from 1st March 1882. ठीक है? Now what are the negotiable instruments? Negotiable instruments are the written documents. Okay? Negotiable instruments are the written documents which can be negotiable. Which can be negotiable. Negotiable means transferable. Okay? Which can be transferable. Fine? The negotiable instruments can be transferred. Okay? Transfer till the maturity. Till the maturity of the instrument. Okay? It can be transferred n times. It can be transferred n times till its maturity. Till its maturity. Okay? Fine? Is it clear? Now, what are those negotiable instruments? Negotiable instruments are described, are explained, or are defined under section 13. Under section 13 of the Negotiable Instrument Act 1881. Fine? Just wait for Rohit. 2 minutes. He's coming. Yes, come. So, welcome Rohit. Good evening. So, today we have started this chapter, okay? Negotiable Instrument Act 1881. The law has been enacted, this law means Negotiable Instrument Act. This act has been enacted in the year of 1881 and it came into force, means it has been commenced from 1st March 1882. Please write it down. Don't forget to write it down. Okay, the Negotiable Instrument Acts has been defined under section 13 of the Act. ठीक है? It came into force, means it has been commenced from 1st March 1882. ठीक है? The pen. First March 1882. This act has been commenced.
ठीक है, मीन्स वाह कमेंट्स बोलने से फिर ठीक है, came into force or commenced. Fine. Now, what are called negotiable instruments? Negotiable instruments are those instruments which are the written documents. Negotiable instruments are the written documents that can be negotiable. That can be negotiable means transferable. Okay, and these negotiable instruments can be transferred and number of times. These negotiable instruments can be transferred and number of times till its maturity. Till its maturity. Okay, fine. Okay, is it clear? Now, what are those negotiable instruments? According to section 13, negotiable instruments are the promissory note, bills of exchange, or check, payable either to order or bearer. Okay, either to order or bearer. Now, check is a kind of what? Check is a kind of negotiable instrument, and it is another form of bills of exchange which is drawn from a specified bank. ठीक है, which is drawn on a specified bank. Check. ठीक है, fine. Now, payable either to order or bearer क्या है? Order में क्या होता है कि आप जिसको पे कर रहे हो उसका नाम लिखा हुआ होता है. ठीक है, the name will be mentioned in case of order. ठीक है, but in case of bearer the name will not be mentioned. ठीक है, जैसे चेक हुआ, चेक में नाम मेंशन किया नहीं हुआ है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, ठीक है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है ना, किसी के पास भी ट्रांसफर चला जा सकता है ना. इज इट क्लियर? फाइन. An order paper specifies the name of the individual to which payment of the instrument can be made. Understood? Name will be mentioned in case of order. A bearer instrument is the opposite of an order instrument, as no individual is designated. Okay? There will be no name. The person or whoever has to be given, whoever has to be transferred, that one is not mentioned. Okay? That one is not designated. Fine? Anyone holding the bearer instrument can be paid. The most common example of an order paper is a personal check. Check यहाँ पे नाम. ठीक है? Fine? Is it clear? Any doubt? My online students, any doubt? No, ma'am. Okay.
what are the essential characteristics of negotiable instruments? ठीक है. First one is transferability. Okay, the negotiable instruments can be transferred n number of times, okay, till its maturity. Till its maturity. Now, transferability can be called as endorsement, or it may be in the form of delivery. Now, what is endorsement? The written form is called as endorsement. जब भी कोई negotiable instrument ट्रांसफर होने वाला है, किसी के दूसरे के पास जाने वाला है, और वो written form में है, that is called endorsement. If it is not in a written form, just a bearer instrument, किसी का नाम भी नहीं लिखा है, just delivery होने वाला है, then it is called as delivery. Is it clear? Okay? ठीक है? Endorsement में क्या होता है? Order is mentioned. Okay? और delivery में bearer instrument. Fine? No name. And endorsement में name is mentioned. Is it clear? Independent title. Any negotiable instrument that is having an independent title means जैसे sales of deeds में था, जैसे कोई भी चीज़ जो मैं ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ, ठीक है, वो अगर मेरा टाइटल नहीं है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द कार, आई एम गोइंग टू सेल यू, ओके, मुझे एक गाड़ी सेल करना है, मैं तुम्हें सेल कर रही हूँ गाड़ी, ठीक है, और मैं उस गाड़ी का ओनर नहीं हूँ, मैं उस गाड़ी का टाइटल नहीं हूँ, ठीक है, तो आई कैनॉट ट्रांसफर दैट वन, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. बट इन केस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने जा रही हूँ, तो जैसे मुझे रास्ते पे कोई चेक मिल गया, ठीक है, बा कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया, तो वो किसी दूसरा का टाइटल है, बाय फ्रॉड किसी ने फ्रॉड करके वो अपना पास लिया, और अगर वो मुझे दे दिया तो टाइटल मेरा क्या होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा. समझ में आ गया? मेरा वो इंडिविजुअल टाइटल हो जाएगा. सबका एक इंडिविजुअल टाइटल होता है, ठीक है, इन केस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, फाइन. ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, ओके, बिकॉज एवरीबडी हैज अ इंडिपेंडेंट टाइटल इन केस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. सर्टेनिटी मतलब यस, अमाउंट टू बी सर्टेन, पर्सन शुड बी सर्टेन. ऐसा नहीं है कि रोहित तो रोहित को ही मिलेगा, ठीक है, या तो रोहित और राज, ऐसा नहीं होता है. सर्टेन शुड बी होना है, डेट पर्टिकुलर डेट में ही होना है. ठीक है. एवरीथिंग शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. इज इट क्लियर? फाइन. Everything should be crystal clear, okay? There should not be any kind of confusion, okay? Right to sue. The holder in due course of a negotiable instrument can sue on the instrument in his own name. Holder जो है, जो जिसके पास negotiable instrument रहता है, ठीक है, और holder in due course फ्यूचर में भी अगर कोई है, ड्यू कोर्स में भी अगर था, होने वाला है, तो वो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अपने पास, अपने नाम में होने के लिए वो क्या कर सकता है? हाँ, वो क्या कर सकता है? कैन सू, कैन गो फॉर ए लीगल रिमेडी. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है. इज इट क्लियर दिस मच? Promissory note. Promissory note is described in section 4 of the
Negotiable Instrument Act 1881. And the bills of exchange is explained under section 5 और check is explained under section 6. ठीक है, 4, 5, 6. फाइन. अब promissory note क्या है? अच्छा पहले ये रुको. Yes, this is a kind of promissory note. Okay, this is a kind of promissory note. Here you see एक promissory note कैसे बनता है. ठीक है, 60 days after the due date I promise to pay Mr. B. यहाँ पे B कौन है? बी हो गया मिस्टर बी. मिस्टर बी कौन है? हाँ, कौन है? हाँ, कौन है? किरण हो गया. ठीक है, उसका ही नाम लेते रहो. और ए हो गया अंजलि. ठीक है, ओके. ए ने क्या बनाया? ए इज द मेकर. प्रॉमिसरी नोट में क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं. हु प्रॉमिसेस? अंजलि. हु इज द मेकर? जो मेकर है, जो बनाता है प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करता है. शी इज द प्रॉमिसर. ठीक है, शी इज द मेकर. और जो जिसको क्या करना है? पेमेंट करना है. कौन, किसको पेमेंट करना है? किरण को. तो किरण को पेमेंट करना है, तो किरण क्या है? पे. ठीक है, फाइन. किरण इज कॉल्ड द पे. ठीक है. और स्टाम्प ड्यूटी. स्टाम्प ड्यूटी मतलब जैसे तुम्हारा 2000 रुपीज बट 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज का ₹2 जैसे स्टाम्प लगेगा, है ना? समझ में आ गया ना? तो तुम्हारे अमाउंट के ऊपर वो स्टाम्प लगता है. ठीक है. तो ये 60 डेज आफ्टर द ड्यू डेट. 60 डेज मतलब आफ्टर द ड्यू डेट. ड्यू डेट को क्या है? 7th जून. 7th जून मतलब ड्यू डेट. आफ्टर द ड्यू डेट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी मतलब मिस्टर किरण. और ऑर्डर. ऑर्डर किसके? मिस्टर बी. और ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 ओनली. ठीक है. अब देखो, पार्टीज. देयर आर 2 पार्टीज इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट. इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है. एक कौन है? मेकर. मेकर कौन है? अंजलि. ठीक है, अंजलि बना रहा है प्रॉमिसरी नोट. द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिसेस टू पे. ठीक है. नंबर 2, पे. पे कौन है? द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड. मतलब किरण. किरण इज द पे. समझ में आया? द प्रॉमिसरी नोट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर. अंजलि को क्या करना है? अंजलि ने प्रॉमिसरी नोट बनाया क्योंकि अंजलि इज द मेकर. तो अंजलि का हमेशा सिग्नेचर रहना पड़ेगा. मतलब देयर शुड बी सिग्नेचर ऑफ द मेकर. ओके, ठीक है. प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे. प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक प्रॉमिस है और नहीं तो अंडरटेकिंग है कि यस मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें इतना अमाउंट आफ्टर 60 डेज, 60 डेज के अंदर, बस 60 डेज के आफ्टर द ड्यू डेट बोला है ना कि फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट ड्यू डेट मतलब कितना है? 7th जून है ना? तो 7 जून के बाद से 60 डेज शुरू होगा आफ्टर द ड्यू डेट. ड्यू डेट क्या है? 7th जून. तो 60 डेज उसके बाद से जो 60 डेज है उसके अंदर, ठीक है, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी. ठीक है, अंडरस्टूड?
प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल. ऐसा नहीं है कि अंजलि बोलेगा किरण से कि देखो अगर मेरा इस साल के अंदर मेरा शादी हो जाएगा तभी मैं तुम्हें पे करूंगा. ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ भी कंडीशन नहीं ला सकता है. ठीक है, समझ में आ गया? द मेकर कैनॉट गो फॉर एनी कंडीशन. इट शुड बी अनकंडीशनल प्रॉमिस. ओके फाइन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, द मनी एंड अ सर्टेन सम ऑफ मनी. मनी एंड ए सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब जो मनी है एंड ए सर्टेन, ऐसा नहीं है कि 2000 और 3000 बट विद इन 20,000. ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए. वो क्लियरली तुमको मेकर को उसमें क्या करना है, मेंशन कर देना है. ठीक है, तो क्या जैसे 20,000 अमाउंट है बट 2,000 अमाउंट है, वो क्लियरली शी शुड मेंशन, द मेकर शुड मेंशन इन अ प्रॉमिसरी नोट व्हाइल प्रॉमिसिंग टू द पे. ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज, पे एंड मेकर, मतलब उन लोगों का, उन दोनों का नाम शुड बी मेंशन क्लियरली. ऐसा नहीं है कि अनीता अंजलि, नहीं तो अनीता, ऐसा नहीं होना है. अंजलि तो अंजलि, अंजलि नहीं तो राज, नहीं, ऐसा नहीं होना है. ठीक है, समझ में आ गया? एंड मेकर का भी ऐसा है, पे का भी. पे अगर किरण बोलता है कि ठीक है तुम एक काम करो, मुझे नहीं पे करके उसको पे कर दो, ऐसा नहीं, वहां पे मेंशन होना पड़ेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? फाइन. क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में आपका दो ही पार्टीज हो सकता है, वन इज द मेकर, अनदर इज द पे. लेकिन आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वहां पे 3 पार्टीज हो सकता है. ठीक है, नाउ अदर देन अ बैंक और करेंसी नोट, बैंक में ये जो ड्रॉन होगा किससे, प्रॉमिसरी नोट जो बैंक के बाहर, बैंक में नहीं हो सकता है. ठीक है, और करेंसी नोट नहीं हो सकता है. ठीक है, पेबल टू बेयरर और ऑर्डर. बेयरर इन केस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ये बेयरर हो भी सकता है, लेकिन आरबीआई जो एक्ट है वो सपोर्ट नहीं करता है. प्रॉमिसरी नोट को जो बेयरर को पे नहीं कर सकता है, मतलब बेयरर को क्या मतलब पे नहीं कर सकता है, मतलब विदाउट मेंशनिंग द नेम, ऐसा नहीं हो सकता है. ये दिस विल नॉट, this will not support the, this will not support the promissory note payable to the bearer. Okay, ठीक है, is it clear? excuse me Yes, मैम, सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज मतलब मैम उसको अच्छे से समझ नहीं आया. yes, certainty of parties means the parties, the name of the parties should be mentioned properly. Means it should be clear that agar Rohit is the maker, then Kiran is the pay. ठीक है, if Anjali is the maker, then the name of Anjali will be there, not other person. Or if the pay is Kiran, then only the name of Kiran should be there. It should not be other person. So the certainty of parties should be there. Means both the parties, there should be 2 parties. One is maker, another is pay, and both the names of the parties, the maker's name and the pay's name should be mentioned clearly. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, fine, thank you. Now, this promissory note is, this promissory note cannot be payable to the bearer. It can be payable only to the order. Okay? So, promissory note is payable to order only. Okay, fine? नींद आ रहा है किसके? नहीं होता है, मेकर का ही होता है. ठीक है,
Okay, fine. Any doubt? बोलो. यहाँ पे क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, यहाँ पे तुम्हारा 3 पार्टीज होता है, ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हाउ मेनी पार्टीज? 3 पार्टीज. फर्स्ट वन इज ड्रॉयर, सेकेंड वन इज ड्रॉई, थर्ड वन इज पे. ड्रॉयर कौन है? द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे और हु मेक्स द बिल. जो बिल बनाता है, क्या बिल? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. और ड्रॉई कौन है? द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे. व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर, ठीक है. जैसे मैंने, तुमने, रोहित, प्लीज लिसन केयरफुली माय स्टूडेंट्स. रोहित, यू आर द I am a sailor, okay? I am a sailor. You came to me, okay? And तुमने बोला मुझे कि मैम मुझे कुछ गुड्स चाहिए, कुछ भी गुड्स सपोज ले लो, तो कुछ भी गुड्स चाहिए. तो मैंने बोला ठीक है. सो मैंने बोला कि तुम्हारे ऊपर तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देती हूँ, ठीक है. तो मैंने एक बिल बनाया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है. और उसमें क्या लिखा है कि तुमको कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है, 20,000. फाइन, 20,000 पे करना है मुझे, ठीक है. तो मैं कौन बन गई? सेलर कौन है? सेलर कौन है? ड्रॉयर, ठीक है. सेलर कौन है? ड्रॉयर. और ड्रॉई कौन है? बायर, ठीक है. अच्छा, अब पे कौन है? अगर पैसा, देखो, अगर पैसा तुम मुझे देते हो, इफ यू पे द अमाउंट टू मी, इफ आई विल टेक द अमाउंट, देन आई विल बी कॉल्ड एज द पे. ड्रॉयर एंड पे, ठीक है. समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलती हूं कि रोहित, मैंने भी, तुम एक काम करो, तुम पेमेंट जो तुमको मुझे देना था, जो व्हाट पेमेंट, 20,000 अमाउंट, तो वो 20,000 अमाउंट तुम किरण को दे दो, ठीक है. क्योंकि मैंने भी गुड्स जो अभी मैंने तुमको सेल किया, वो गुड्स मैंने किरण से खरीदा था एट आर अमाउंट ₹20,000, ठीक है. तो तुम पेमेंट किसको करोगे? मुझे नहीं करके किसको करोगे? किरण को करोगे. सो इन दिस केस हाउ मेनी पार्टीज वी ऑल आर? 3 parties, okay? One is called the drawer, another is called the drawee, and the third party is called the payee. Is it clear now? The sailor can be a payee if the buyer has to pay to the sailor, okay? But in case if the sailor, अगर sailor को पे नहीं करना है, किसको? बायर को अगर पे नहीं करना है, सेलर को, थर्ड पार्टी को पे करना है, तो द थर्ड पार्टी विल बिकम द पे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैम एक चीज मतलब पूछना था. हाँ हाँ पूछो. मैम जैसे कि ड्रॉअर हो गया वो सेलर, और ड्रॉई हो गया जो बायर है. मतलब मैम अगर जो बायर है वो ड्रॉयर, मतलब जो सेलर को पैसा ना देके, मतलब उसको हैंड टू हैंड कैश ना देके अगर वो बैंक में जमा कर दे, तो क्या पे बैंक हो सकता है? मतलब सेलर का बैंक, जो बैंक अकाउंट है, अमाउंट, सेलर का अमाउंट, सेलर के अमाउंट अकाउंट में? यस मैम. नहीं, रुको रुको, सेलर को डायरेक्टली पे नहीं कर करके? हाँ मैम, डायरेक्टली पे ना करके डायरेक्ट बैंक के थ्रू. बैंक में क्या? यस मैम. मतलब बायर, मतलब जो गुड्स जो बायर ने खरीदा, किससे खरीदा? सेलर से खरीदा, है ना? यस मैम. हाँ, और सेलर को वो क्या किया?
उसको उसको ना पे करके बैंक को पे कर रहा है ना? यस मैम, मतलब उसका अकाउंट में डायरेक्टली वो हाँ, तो पैसा पे कर वो तो किसके अकाउंट में जा रहा है? सेलर का। सेलर के अकाउंट में। वो तो थर्ड पार्टी नहीं हुआ ना? ओके, यस मैम, अभी समझ आ गया। ठीक है, यस मैम, ठीक है। क्लियर। Very nice question. I liked it. Very nice question. Thank you, thank you. So अब समझ में आ गया ड्रॉयर, ड्रॉई, पे. Okay? Did you understand? Now here you see. This is called the bills of exchange. Okay? Date will be mentioned. Date will be certain. Okay? The date will be certain. Okay? Then the revenue stamp will be there. Revenue stamp will be based on the amount. Okay? Then A is the what? A is the, this A is the, A orders B to pay C. A is the seller. Okay? B is the buyer. ठीक है? Okay. So A is the seller, B is the buyer. Now A orders B to pay C. Pay C. C is the third party. C will be called as the payee. Okay. Rupees 2000 after 2 months only for value received. So A क्या हो गया? A यहाँ पे goods सेल किया. अगर ऐसा, अगर देखो, yes, my dear students, online students who asked me this question, what's your name? Ram Thapa. Okay, now Ram, just see here. If A orders B, if A orders B, क्या है? A is the seller है और B है क्या? Buyer. ठीक है? अगर ऐसा किया कि A ने बोला कि C का जो अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में पे करो. C को जो C का पर्टिकुलर अकाउंट है उस पे जाके तुम क्या करो? पे करो. देन द C का जो अकाउंट बैंक में जो पे कर रहा है, देन द बैंक में जिस अकाउंट में पे किया, C का अकाउंट में पे किया, तो द बैंक इज ऑल्सो विल बी कॉल्ड एज द पेई. ठीक है? यस मैम. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम. So any doubt now here? नो मैम, ऑल क्लियर. Any doubt? तुम लोग को क्या पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टीज होता है? हाउ मेनी पार्टीज? 3 पार्टीज. One is the drawer, another is the drawee. Drawee will be called as the acceptor. When he will be called as the acceptor? When he accepts the bills of exchange. Okay, then he will be called as the acceptor. And the payee. Okay, if the third party will not be there, then the payee will be only be the seller or the drawer. ठीक है? If the third party is there, then the payee will be called as the third party. If the payment should be done to the third party. ठीक है? Fine. A bills of exchange must be in writing. ठीक है? It must be dated, due date, maturity date, सब कुछ mention होना पड़ेगा. It must contain an order to pay a certain sum of money. Order क्यों? Because the names will be mentioned.
Okay, the money must be payable to a definite person or to his order to the bearer. ठीक है, जो होल्ड कर रहा है, द मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन, मतलब जो रोहित है, रोहित को ही मतलब पे करना है मनी, है ना, और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर, जो होल्ड करके रखा है उसके नाम पे. ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें कुछ भी कंडीशंस नहीं रखना है कि रोहित भी हो सकता है या नहीं तो किरण भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना है. ओके, एकदम क्लियर कि रोहित को पे करना है या किरण को करना है, दैट शुड बी रिटन क्लियरली, दैट शुड बी मेंशन क्लियरली. ओके, the time of payment must be indicated. The time of payment must be indicated in the bill with certainty. अगर टाइम जो पर्टिकुलर कौन सा पीरियड में पेमेंट होना है, आफ्टर 20 डेज और आफ्टर 1 मंथ और बिफोर विद इन 1 मंथ, तो ये टाइम पीरियड आपका मेंशन होना चाहिए. ओके, दैट शुड बी सर्टेन. ओके, ऑर्डर टू पे डज नॉट मीन अ कमांड. जो बोलते हैं ना कि ऑर्डर देते हैं ना कि ये पे करो, तो दैट इज नॉट अ कमांड, दैट इज अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन. फाइन. मस्ट बी साइन बाय मेकर. जो मेकर होता है वो हमेशा साइन करना पड़ता है, क्योंकि वो बनाता है ना. आपने ये प्रॉमिसरी नोट में भी देखा है और इसमें भी मेकर को करना पड़ता है. और जो ड्रॉई है दैट वन हैज टू बी ऑल्सो साइन. ठीक है, और अगर जो पेई है उसको भी करना पड़ेगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? ड्रॉयर. हाँ, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है कौन है? ड्रॉयर. ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसको बोलते हैं ड्रॉयर और प्रॉमिसरी नोट में बोलते हैं मेकर. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? देखो, सेलर और ड्रॉयर और मेकर और पे. समझ में आया? मतलब जो जिसको पैसा चाहिए ना, जो बिल बनाता है, वो ड्रॉयर है, मेकर भी है और पे भी है. क्योंकि अगर उसको पेमेंट चाहिए तो वो तो पे बनेगा ना. और बी जो है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको पेमेंट करना है ना, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है, जो आदमी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिलता है और जिसको पेमेंट करना है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बायर और ड्रॉई और पेयर. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट? Now this is the difference. This is very important. Okay, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. ठीक है, और आपको ऐसा दे भी सकता है कि पिक्चर देके कि ये क्या है negotiable instrument. This is the bills of exchange or promissory note. ठीक है, promissory note under section 4 it is defined. Bills of exchange under section 5 it is defined. Okay, then promissory note unconditional undertaking. इसमें क्या होता है? promissory note में unconditional undertaking मतलब ये जो अंडरटेकिंग है, इट मीन्स अनकंडीशनल प्रॉमिस. ठीक है, अनकंडीशनल प्रॉमिस. फाइन. एंड हियर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब रिक्वेस्ट. ओके, फाइन. इज इट क्लियर? This much clear? Now maker is the payer. Maker is the payer. ठीक है, किसमें? Promissory note में.
ठीक है, और यहाँ पे मेकर इज द पे, इसमें मेकर कौन हुआ, सेलर, ठीक है, उसमें मेकर जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट कि मैं तुम्हें इतना पे करूंगा, तो इसमें मेकर कौन हुआ, यस, समझ में आया, समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, इसमें क्या है, लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, क्योंकि मेकर का लाइबिलिटी प्राइमरी है, यस, वो बनाता है ना प्रॉमिसरी नोट, वो बोलता है ना कि मैं प्रॉमिस करता हूं, तो ही इज प्रॉमिसिंग, तो उसका लाइबिलिटी प्राइमरी है ना, किसका, मेकर का, बायर का, ठीक है, और इसमें मेकर क्या है लाइबिलिटी, सेकेंडरी एंड कंडीशनल, कंडीशनल नहीं होगा, सेकेंडरी है, सेकेंडरी, ठीक है, डिस्काउंट कर देगा तो होगा, और एक बात है, यहां पे ग्रेस डेज होता है, 3 days ग्रेस पीरियड होता है, 3 days ग्रेस मिलता है, लेकिन यहां पे नहीं मिलता है, प्रॉमिसरी नोट में ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 days का ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है, समझ में आया? कैनॉट बी डन इन सेट्स, ये सेट में 3 2 3 करके ये नहीं कर सकता है ना, जो प्रॉमिसरी नोट एक पर्सन प्रॉमिस करता है ना, सिंगल पर्सन, तो 2 3 करके प्रॉमिस नहीं करता है ना, लेकिन यहाँ पे कैन बी डन इन सेट्स, जैसे पेमेंट मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं देके तुम दूसरा को दे दो, सी को दे दो, तो वो 3 सेट में हो गया ना, सी भी ऐसा कर सकता है, सी को भी टिल इट्स मैच्योरिटी, सी बोल रहा है कि नहीं मैं पेमेंट मुझे नहीं करना है, तुम उसको दो, समझ में आया? Is it clear? Any doubt? So today we have studied what? Promissory note and bills of exchange. मैं और जाना चाहती थी, चेक आई वांट टू टीच यू, लेकिन मैं आज इतना तक छोड़ती हूँ। क्यों छोड़ रही हूँ तुम लोग को? ताकि तुम लोग का कन्फ्यूजन ना हो। एटलीस्ट आफ्टर गोइंग होम टुडे यू प्लीज स्टडी दिस 2 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों पढ़ लो अच्छा से। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर चेक, ओके? इज इट क्लियर? सो आई एम वाइंडिंग अप हियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वन एंड ऑल। Thank you, ma'am.